السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس with suggested interior، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کا پیر سے آغاز، وسیع تر انتظامات، حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا عکس، فیوچر سٹی کے ذریعے ایک نئے شہر کا قیام۔ انڈیگو فضائی بحران سے نمٹنے، قصوروار کمپنی کو ہی حکومت کی راحت، اندرون 3 یوم معمول پر لانے اقدامات، ہزاروں افراد اب بھی متاثر۔ منگل کو وجے دیوس منانے KTR کا اعلان، 9 دسمبر کو تشکیل تلنگانہ کی شروعات۔ JD مٹلہ میں دل دہلانے والا واقعہ، آخری رسومات کے لیے پیسے نہ ہونے پر لاش کے ساتھ 3 دن رہنے پر ایک خاندان مجبور۔ اور گیس لیک ہونے سے بھڑک اٹھی آگ، ایک خاتون بری طرح جھلس گئیں، راجندر نگر میں افسوسناک واقعہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں کانگریس حکومت کی 2 سال کی تکمیل پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی زیر قیادت حکومت نے
तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का एहतमाम किया है। इस समिट के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी है। मेहमानों की आमद के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुल्क में फ़िज़ाई सफ़र के जारिया बहरान को देखते हुए रियासती हुकूमत ने मेहमानों के सफ़र के लिए मुतबादिल इंतजामात को खतियत दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर 8 दिसंबर से शुरू हो रहे इस बड़े प्रोग्राम के इंतजामात को खतियत दे दी है। मंदूबीन बैरूनी मेहमानों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। प्रजा भवन में कायम किए गए वार रूम के जरिए इंतजामात पर नज़र रखी जा रही है। फ्यूचर सिटी हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर अजला रंगारेड्डी के कंदुकूर में वाक़ है। 4500 मंदूबीन को मदऊ किया गया है, जिनमें बैरूनी सरमायाकार, सनतकार, सिफारतकार, बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे, माहिरीन मुआशियात, मुख्तलिफ शोबों की सरकर्दा शख्सियात, बॉलीवुड टॉलीवुड से वाबस्ता अदाकार, मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, मरकज़ी वज़रा, मल्टीनेशनल इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। इफ्तिताह खुला इजलास 1 बजे शुरू होगा। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में तवानाई, माहौलियात, जंगलात, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आला तालीम, सनतें, सेहत आम्मा, अफरादी सलाहियतों के लिए मौक़े, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, एशियन ममालिक, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, कनाडा, खातून सनतकार, जेनियम वैली, स्पोर्ट्स, टूरिज़म, प्लानिंग, हाउसिंग, इमारत व शवारे, फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, समाजी बहबूद के बशमूल दीगर कई मौज़ूआत पर 8 और 9 दिसंबर को मौज़ूआती इजलास होंगे। इख्तितामी तकरीब मंगल 9 दिसंबर को शाम 6 बजे मुनक्किद होगी। इस आलमी इजलास से तेलंगाना में सरमायाकारी और नई सनतों को फ़रोग़ देने की तवक्का की जा रही है। फ्यूचर सिटी को एक नए शहर के तौर पर तरक्की देने, वहाँ सनतों के जाल को बिछाना हुकूमत का मकसद है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के 2 साल की तकमील पर अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिना कदम उठाएंगे। 2 साल तकमील पर अपने प्याम में उन्होंने किसान, ख़वातीन, नौजवान, तालीम, सेहत और दीगर शोबों का तफसीली अहाता करते हुए कहा कि आज की इख्तिराई दौर में वो निज़ाम तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। ख़वातीन को एंटरप्रेन्योर्स बनाने उन्हें बिलासूदी कर्ज जारी किया जा रहा है। नौजवानों के लिए स्किल यूनिवर्सिटी, बच्चों के इंटीग्रेटेड स्कूल्स, बेघरों के लिए इंदिरमाह मकानात, सरकारी दवाखानों को मौसर बनाते हुए बेहतर से बेहतर इलाज, नए राशन कार्ड्स की इजराई और दीगर फलाही स्कीमात का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि BRS के दिए गए मलबे पर वो मुस्तकबिल की एक खूबसूरत इमारत तामीर कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि गलत हुक्मरानी से निजात के दूसरे साल की वो मुबारकबाद पेश करते हैं। हुकूमत की मदाखलत के बावजूद इंडिगो एयरलाइंस का बहरान खत्म नहीं हुआ। हुकूमत ने मुसाफिरों की मुश्किलात को देखते हुए इस एयरलाइंस को क़वायद पर अमल से इस्तिस्ना दे दिया था। हुकूमत ने इस फ़िज़ाई बहरान का दूसरी एयरलाइंस की जानिब से बेजा फ़ायदा उठाने पर कीमतों पर तहदीद भी लगाई, लेकिन इसका भी कोई ख़ास असर नहीं देखा गया। बताया जाता है कि इंडिगो एयरलाइंस फ़िज़ाई राब्ते में इजारादारी हासिल की है और मुल्क की फ़िज़ाई सफ़र का 65% हासिल कर रहा है। इसलिए इसके बहरान से लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने एयरलाइन से कहा कि वो सर्विस से महरूम मुसाफरीन को टिकट की रकम वापस करें। एयरलाइंस के ज़राए ने बताया कि सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए मज़ीद 3 दिन लग सकते हैं। बैरूनी ममालिक से कनेक्टिंग परवाज से जाने वाले कई मुसाफरीन परेशान हैं। हत्ता के उम्रह पर जाने वाले और कलीद से वापस होने वाले मुसाफरीन को 2-2 दिन किसी सहूलत के बगैर एयरपोर्ट पर गुजारा करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से हंगामी मुतबादिल इंतजामात न होने और दोबारा इंडिगो को क़वायद की रियायत देते हुए इसको मामूल के मुताबिक परवाजें चलाने को कहा गया है। BRS पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव ने पार्टी के अरकान मुक़द्दना
और ज़िले सुदूर से कहा कि वो मंगल 9 दिसंबर को तश्कील तेलंगाना के दिन के ऐलान को रियासत में विजय दिवस के तौर पर बनाएं। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना के लिए हड़ताल शुरू की थी। उनके इस हड़ताल के दबाव में 9 दिसंबर को मरकजी वजीर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान किया था। इसलिए यह अलहदा रियासत की तश्कील के आगाज से ताबीर किया जाता है। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि वो इस दिन दवाखानों में जाकर मरीजों में मेवे तकसीम करें, बिलखुसूस निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जहां KCR ने भूख हड़ताल की थी, फिजा में गुलाबी गुब्बारे छोड़े जाएं। अंबेडकर के मुजस्सिमों के अलावा तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमों पर फूल मालाएं चढ़ाई जाएं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल पर भारतीय जनता पार्टी BJP ने हुकूमत के खिलाफ इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव ने सदारत की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा और दूसरे कई कायदीन ने इस धरने में हिस्सा लिया। BJP कायदीन ने हुकूमत पर अवाम से वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कांग्रेस ने जिन गारंटियों का ऐलान किया था इसकी अब तक तकमील नहीं हुई। माजी में BRS पार्टी जिस तरह काम करती रही, कांग्रेस भी इसी तरह कर रही है। दोनों जमातों में कोई फर्क नहीं है। इन कायदीन ने हुकूमत की कारकर्दगी पर वजीर आला रेवंत रेड्डी को मुबाहिस का चैलेंज किया। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज ने तेलंगाना को दरकार फंड्स जारी किए हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इससे मुनासिब इस्तेफादा नहीं कर रही है। अवाम के मुख्तलिफ मसाइल को बयान करते हुए BJP कायदीन ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हफ्ते की रात हैदराबाद के गच्चीबावली में एक ही स्टेज पर जलवगर हुए। JMC बालायोगी एथलेटिक स्टेडियम में इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का शानदार आगाज हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सलमान खान भी खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शरीक रहे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सलमान खान ने गर्मजोशी के साथ मुसाहफा किया और गले मिलकर एक दूसरे का खैर मकदम किया, जिसने हजारों शायकीन को जोश से भर दिया। दोनों की मुलाकात के लम्हे की तस्वीर और वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और मद्दाह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तकरीब में वजीर इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं, जबकि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की चमक दमक से स्टेडियम का माहौल तब्दील देखा गया। फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी लियोनेल मेसी हफ्ता 13 दिसंबर को उप्पल स्टेडियम में वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की टीम के साथ एक नुमाइशी दोस्ताना मैच खेलेंगे। इस मैच की तैयारियों का वज़रा की एक टीम ने स्टेडियम का मुआयना करते हुए जायजा लिया। नए वजीर आला भट्टे विक्रमार्का, वजीर IT D श्रीधर बाबू ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर नशीन शिवसेना रेड्डी, कमिश्नर पुलिस रचकुंडा सुधीर बाबू और दीगर अहदेदारों के साथ जायजा लेते हुए मुख्तलिफ हिदायतें दी। जायजा इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए नए वज़ीर आला ने कहा कि मेसी को खेलता देखने मुल्क भर से शायकीन फुटबॉल हैदराबाद आ रहे हैं। अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले इस खिलाड़ी की खुसूसी सिक्योरिटी टीम है। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को खतियत दे दी गई है। उन्होंने इस मैच को देखने आने वालों से कहा कि वो खेल के मुकर्ररा वक्त से पहले स्टेडियम पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए मेसी को मदऊ किया गया है। उनके दौरे का फायदा उठाते हुए उनके साथ एक दोस्ताना नुमाइशी मैच का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खुद भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और मेसी जैसे आलमी फुटबॉलर के मद्दाह भी हैं। इस मैच को पुरकशिश बनाने और हैदराबाद के मैदान पर इस आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी को खेलता देखने इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत रियासत में कांग्रेस इख्तिदार के 2 साल की तकमील पर कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन में पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया। आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात को इस मौके पर नुमायां किया गया।
خواتین کو بااختیار بنانا, سیلف ہیلپ گروپس کو مالیاتی مدد, بسوں میں خواتین کو مفت سفر, نئے راشن کارڈز, پکوان گیس سبسڈی, برقی بلز میں رعایت اور دیگر اسکیمات کو بیان کیا گیا. ریاست میں جاری پنچایت راج انتخابات میں ضلع میدک کے بسواپور پنچایت سے مجلس کی امیدوارہ نجمہ سلطانہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئیں. ان کے انتخاب کا باقاعدہ اعلان 13 دسمبر کو کیا جائے گا. آج پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ تھی. ریٹرننگ آفیسر شامیہ نے بتایا کہ نجمہ سلطانہ کے مقابل دیگر امیدوار مقابلے سے دستبردار ہو گئے. یہ حلقہ ویمن جنرل زمرے کا ہے. نجمہ سلطانہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی شریک حیات ہیں. وہ ماضی میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی کارپوریٹر رہ چکی ہیں. بسواپور گرام پنچایت کے عوام نے ان کے بلا مقابلہ انتخاب کا خیر مقدم کیا ہے. صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پتھر گٹی ڈویژن میں 9 ترقیاتی کاموں کو مکمل کر لیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 24 ترقیاتی کاموں کو منظوری ملی تھی اور ان کا ٹینڈر بھی کال کر لیا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ پتھر گٹی ڈویژن کے تمام کاموں کو جلد پورا کیا جائے. انہوں نے بتایا کہ نظام دور حکومت کا ایک پرانا نالا ابل کر بہہ رہا تھا جس کا کمشنر بلدیہ اور محکمہ آبرسانی کے MD سے وہ دورہ کروا کر GPR تیار کیا گیا ہے جسے جلد از جلد شروع کیا جائے گا. اس کے علاوہ سیوریج کا نالا جو تالاب کٹے سے آتا ہے اس کو بھی جلد شروع کیا جائے گا. اس موقع پر رکن بلدیہ پتھر گٹی ڈویژن سہیل محمود قادری کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے. کالا پتھر کے علاقے میں پولیس کی جانب سے چبوترا مشن اور تلاشی مہم چلائی گئی. انسپکٹر کالا پتھر پولیس خلیل پاشا نے اپنے اسٹاف اور پولیس ملازمین کے ہمراہ کالا پتھر، بریانی شاہ ٹیکری، تاڑ بند، مکہ کالونی اور اس کے آس پاس کے علاقے جات میں کریک ڈاؤن کیا. خلیل پاشا نے بتایا کہ کمشنر حیدرآباد سٹی پولیس VC سجنار اور DCP ساؤتھ زون کی ہدایت پر یہ تلاشی مہم اور چبوترا مشن کیا گیا تاکہ رات کے اوقات میں غیر ضروری گھر سے باہر گھومنے والے نوجوان اپنے گھروں میں رہیں. انہوں نے بغیر نمبر پلیٹ اور بغیر دستاویزات کی گاڑیوں کو ضبط کیا. انہوں نے سرپرستوں اور والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر رات کے اوقات میں گھومنے نہ دیں. راجندر نگر کی نیو فرینڈز کالونی میں ہفتے کی دوپہر پیش آئے ایک افسوسناک گیس لیک حادثے میں 55 سالہ خاتون مادھوی ٹھاگور بری طرح جھلس گئیں. باورچی خانے میں اچانک شعلے بھڑک اٹھنے کے باعث علاقے میں مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور گھر کا بیشتر حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا. ابتدائی معلومات کے مطابق مادھوی ٹھاگور باورچی خانے میں معمول کے مطابق پکوان کر رہی تھیں کہ اچانک گیس لیک ہونے سے دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی. شعلے تیزی سے پھیلنے کے باعث انہیں شدید جھلسنے کی چوٹیں آئیں جبکہ دیگر گھر والے انہیں بچانے کی کوشش میں معمولی زخمی ہوئے تاہم وہ محفوظ طور پر باہر نکلنے میں کامیاب رہے. مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی. اطلاع ملتے ہی راجندر نگر پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروس موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو پایا گیا. شدید زخمی مادھوی ٹھاگور کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ گیس سلنڈر یا کنیکشن میں کوئی خرابی تھی یا حادثہ کسی اور وجہ سے پیش آیا.
पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपने घरों में गैस कनेक्शन की बाकायदा जांच करवाते रहें ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। राजेंद्र नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पेश आया ये गैस लीक हादसा एक बार फिर घरेलू हिफाजत और इमरजेंसी रद्द-ए-अमल की अहमियत को उजागर करता है। हुक्काम का कहना है कि अवाम चौकन्ना रहें और किसी भी मुश्तबा गैस की बू या लीक की सूरत में फौरी इत्तला दें। जड़ीमटला पुलिस स्टेशन की हुदूद में शाहपुर नगर के करीब NLB नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक गरीब खानदान आखिरी रसूमात के अखराजात न होने की वजह से 3 दिन तक अपने घर में नाश के साथ रहने पर मजबूर रहा। तफसीलात के मुताबिक 76 साला स्वामी दास, जो ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखते थे, अपनी बेटी सलोनी के साथ NLB नगर में रिहाइश पजीर थे। सलोनी एक कानगी हॉस्पिटल में नर्स की मुलाजिमत करती थी, लेकिन वालिद की बिगड़ती सेहत के बायस उसे नौकरी छोड़ना पड़ी। स्वामी दास 3 दिन कबल शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए। गुर्बत और माली तंगदस्ती के बायस खानदान के पास आखिरी रसूमात के लिए रकम मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से नाश को 3 दिनों तक घर में ही रखा गया। पड़ोसियों ने घर से तवील अरसे तक कोई बाहर न आने पर शुबा जाहिर किया और मकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादशाह गैर सरकारी तंजीम की मदद से स्वामी दास की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। आगापुरा नामपल्ली के रहने वाले 42 साला रोजीत बसवकर्मा, जो नेपाल के रहने वाले हैं, 26 नवंबर से लापता हो गए हैं। वो घर से अपने रिश्तेदार के पास गए थे और वापस घर नहीं पहुंचे। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाएं तो दरख्वास्त की गई है कि हबीब नगर पुलिस स्टेशन को इत्तला दी जाए या इस नंबर पर इत्तला दी जा सकती है। नंबर नोट कर लें, 630 362 9690, 630 362 9690। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का पीर से आगाज, वसी तर इंतजामात, हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का अक्स, फ्यूचर सिटी के जरिए एक नए शहर का क़याम। इंडिगो फिजाई बहरान से निपटने कसूरवार कंपनी को ही हुकूमत की राहत, अंदरून 3 यौम मामूल पर लाने इक़दामात, हजारों अफराद अब भी मुतासिर। मंगल को विजय दिवस मनाने केटीआर का ऐलान, 9 दिसंबर को तश्कील तेलंगाना की शुरुआत। जड़ीमटला में दिल दहलाने वाला वाकया, आखिरी रसूमात के लिए पैसे न होने पर लाश के साथ 3 दिन रहने पर एक खानदान मजबूर। और गैस लीक होने से भड़क उठी आग, एक खातून बुरी तरह झुलस गईं, राजेंद्र नगर में अफसोसनाक वाकया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।